Yes, Parent sir. of Sugyan, your parent is here. Sugyan, your parent is here. Sugyan, no, Sugyan. Hello. Yes. Hello, sir. Hello. Namaste, sir. हाँ नमस्कार ठीक है okay madam. Sugyan, please inform the students that they should inform their parent to join immediately, as it was Okay, sir. informed to you earlier in the previous day. We are not having some other work also, so if Okay, you sir. cooperate with me, then it will be easy for me to deal with the situation. है ना? Okay, sir. This is the first Okay, meeting with sir. the parent. अच्छा, Akash Chakraborty is here. Yes, Akash I is am. here. Yes, sir. Akash, yes. Yes, sir, I am. Akash is here, and Ranjana is here from Hindi, I think. Ranjana, there is. जी sir, जी Ran- sir, जी sir. Okay. Thanks. And Sugyan, inform करो जल्द क्योंकि we are having only 20 people here. माने I think 17-18 people are here. Total number of people, how many people, parents are here? Sugyan, can you inform me? Sir, Sir, I am Sugyan, Topon Kumar Haldar, father of okay. So father of Santini. yes, Father sir. of Santini. Okay. Thank you, Haldar Babu. Okay, thank you very much. Okay. I am Gokul Chandra Ghosh, son of Mona. Yes. Very good. I'm happy Chandan that Prasad, I'm sir. getting some opportunity. I'm getting some opportunity to have a discussion with you. Opportunity because you see, amidst the COVID situation, we live with each other. So Hi this to is a sir. golden I opportunity am Chandan to at Prasad. least yes, thank you. At least Father we can Srishti exchange our Prasad, sir. opinion in this meeting. Sure. Hello. And I'm expecting actually see many of the parents are here. And one thing it is observed that after 4-5 days, the attendance of the students in different classes, it is less in number. So the parent, those who are present here, जो parent यहाँ पे present है, वो तो बच्चे तो हमेशा क्लास में आते हैं. हमारी क्लास में 51 अभी strength है, and the total strength of the class is 51, and almost I think 36 to 40 students they are regularly coming, and there are 9-10 people they are not actually attending the classes in a regular basis. तो ये हम चाहते जैसे आप कुछ पेरेंट इनिशिएटिव ले, क्योंकि ये तो जस्ट शुरू हुआ है. 10 to 12 डेज हमारा क्लास हुआ है. तो अभी इनिशियल स्टेज में यदि बच्चा इतना माने ये कर जाते हैं कि दे आर माने लूजिंग कॉन्फिडेंस इन दिस वे. So in that case, parent has to take the initiative and to time they should talk with us. One thing I want to that there are 2 new teachers. There are 2 new very I think what I say that skillful teacher. Although they are not having enough experience, but both of them are having very good knowledge in their subject, particularly. One is Akash Chakraborty. One is Akash Chakraborty. I think that you have got the information from your word that Akash. Time to time, I am also asking the students about him. I'm not having direct opportunity to enter in the classroom of Akash, but the opinion of the students is very high about Akash. And he is a good. He was a very good student in his student life. And he has completed his there is MSc from RI Regional Institute. Actually, it is very difficult to get admission in these institutions, in a very prestigious institution. So, RIT, sir. RI Regional Institute. अच्छा. रीजनल इंस्टीट्यूट. तो आकाश चक्रवर्ती वो बहुत अच्छे, मतलब उनका सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है. जैसे बच्चे ने ये किया है तो थोड़ा एक्सपीरियंस का कमी है, लेकिन आप लोग का हमारा काम है जिनका ये जो नॉलेज है उसका फायदा हमारा बच्चे को आए. थोड़ा मतलब धीरे धीरे देखेंगे. ही विल बी एसेट एंड ही वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर वर्क. है ना? In what subject, sir? No, he is a teacher of chemistry. He's a teacher of chemistry. He's teaching chemistry. And Ranjana is also a very good teacher. He is in she's in Hindi. She's in Hindi. So those who are having Hindi,
they will also be benefited from Ranjana. She is very helpful and having enough energy and to help the students, है ना? तो ये आपके लिए अच्छा है कि कभी-कभी जब बच्चे कम एज का आते हैं ना, उनका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, वो मेहनत ज्यादा करते हैं, है ना? वो मेहनत ज्यादा करते हैं। जैसे आकाश जैसे बहुत स्किलफुल है, कंप्यूटर स्किल उनका काफी अच्छा है ना? आजकल का तो टीचिंग में कंप्यूटर स्किल काफी इंपॉर्टेंट हो, आप तो देखे होंगे। इस सिचुएशन में जब ऑफलाइन नहीं होता तो ऑनलाइन टीचिंग में कंप्यूटर स्किल ये बहुत बड़ा मैटर करता है ना? तो you'll be benefited, है ना? एंड अदर थिंग दैट अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, इसलिए आप देखेंगे जैसे बच्चे सेल्फ स्टडी और क्लास अटेंड करना काफी मतलब वाइटल है। तो बच्चे को देखेंगे जैसे वो क्लास जरूर अटेंड करेगा, एब्सेंट होना नहीं चाहिए। एब्सेंट होने से क्या होता है, मान लीजिए हमारा चाहे किसी भी टीचर का काम ये होता है, बच्चा कहाँ चल गया, वो फिर इस बच्चे को देखो व्हाट्सएप में लिखो ये क्या कर रहा है, उसको फोन करो। इसमें क्या होता है, कोई भी टीचर जो है ना, उनका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है और एक जो फाइन मेंटेलिटी के साथ क्लासरूम के अंदर इंटर करते हैं ना, वो नहीं रहता है। उसमें एक होता है कि आप पढ़ाते लेकिन मन में ये कि ये बच्चा नहीं आया, है ना? वो कभी कभी क्या होता है कि 10-15 मिनट के बाद ये हमारा दिमाग में आ जाते हैं, पर दैट स्टूडेंट, है ना? तो ये आपका कंसंट्रेशन का जरूरत है। You are also a nice faculty, sir, in the respect of mathematics, sir. According to my watch, Shri Prasad, हाँ sir. बोलिए। You are also a हेलो, nice बोलिए। faculty, sir. You are also a nice faculty, sir, in the respect of mathematics, sir. Yes. Thank you. And then mathematics. हाँ Yes. बोलिए। और जो आप बोल रहे थे कि सर कि औरों के विषय में जो आकाश में, तो मैं कहूँगा सर आप भी एक अच्छा फैकल्टी है, क्योंकि आपका भी क्लास मिस नहीं करना चाहती है सृष्टि प्रसाद, और पहले से काफी ठीक है सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट देखिए क्या होता है कि हम लोग तो काफी एक्सपीरियंस्ड है और बच्चे हमको जानते ही, एक रिलेशन हमारे साथ ऑलरेडी डेवलप हो गया। सृष्टि हरसेल्फ इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, पर्सनली आई टॉट हर, है ना, इन क्लास 9। तो ये एडवांटेज होता है क्योंकि हमारा मेंटेलिटी के बारे में जानते हैं। देखिए हमारा क्या होता है, मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं बच्चे को डांट देता हूँ, क्योंकि हम जिस वर्ड में डांटता हूँ शायद कोई टीचर इतना मतलब स्ट्रांगली डांटते हैं, लेकिन साथ साथ अप्रिशिएट भी उतना स्ट्रांगली करता हूँ। ये हमारा नेचर है। मैं भी सर एक छोटा टीचर हूँ सर, मैंने देखा हूँ कि सर जो आपकी जो ये है परफेक्शन है सर अपने अपने जॉब में, वो काफी अच्छा है सर। और टीचर को ऐसा होना भी चाहिए सर। आप काफी कोऑपरेटिव हैं, बच्चों को काफी करेज भी करते हैं, ये मैं देखा हूँ सर पर्सनली। ठीक है सर। हाँ, और चलिए रेगुलर ले रही है मैथ को लेकर, काफी हेडेक है सर इसको, बट अभी बहुत अच्छा है सर, अच्छा कर रही है। ठीक है। बोलिए। हेलो। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि 11th में आते ही सर, हेलो, initially she was very nervous sir, but after joining your class sir, she feels improved. नहीं, वो तो कोशिश करते हैं। जैसे देखिए हम तो बहुत लाइट में ही पढ़ाते हैं, कभी हम सोचते हैं जैसे घर का एटमॉस्फेयर लाना चाहते हैं। मैं बहुत ज्यादा सब में कन्वेंशनल रहता नहीं हूँ, है ना। कभी मैं बात भी करता रहता है इधर करके, कोशिश करता हूँ जैसे कि सिचुएशन बच्चे थोड़ा सा मतलब इजी वे में पढ़ाई करे। ऐसे तो स्ट्रेस में है, बच्चे बाहर भी नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे मैं यही कहूंगा सर कि यहाँ पे जो भी गार्जियन जुड़े हुए हैं, उनको माने आप लोग अपना समय निकालकर एक सही समय पर आकर जो पंचुअलिटी के साथ अपने क्लास मेंटेन करते हैं सर, देते हैं, तो इसे बच्चे इग्नोर ना करे क्लास को। और कितने बच्चे तो मैं, हाँ, मेरी एक्सपीरियंस रहा इनिशियली, और 9th-10th में मैं देखा था कि बेटी को भी अपना क्लास ले रही है और बगल में दूसरा काम कर रही है। मैंने कहा कि नहीं, ये टीचर का अपमान है, बड़े टीचर नहीं देख पा रहे हैं, बट ये इंसल्टिंग वे है उनके लिए, तो यू डोंट हैव टू डू सच ए जॉब। Thank you, parent of Srishti. I'm very happy, and I want to meet with you personally and very soon. If you meet with me personally, then I'll be also. And it will be good. That is good suggestion for me. It will be to be, sir.
Yes, yes. Thank you very much for your opinion and appreciation towards us. So we are also a teacher, that is Guha Madam is here. She will also talk with you. And here also, I think Gupta sir, D. Gupta sir, very efficient computer teacher. Physics teacher is also very efficient, very senior and very knowledgeable lady, and she will guide you properly. Hai. So I'd like to request a Guha Madam to address the parents, hai, and guide the children. Yeah, good afternoon. I think I'm audible to everybody. Good afternoon, all the parents. Good afternoon, madam. Good afternoon. Good afternoon. This is the first time we Guha are Madam. meeting. বলুন ম্যাডাম ম্যাডাম 1 মিনিট হ্যাঁ 1 মিনিট ম্যাডাম ওকে বলছি আমি একটু বিজি হয়ে যাব, আপনি কাইন্ডলি এটাকে কমপ্লিট করে দিন, ঠিক আছে? বলুন স্যার আমাকে লিভ করতে হবে বিকজ আই হ্যাভ টু ক্যাচ দ্য ট্রেন এনিওয়ে আপনি মিনিট বলে দেবেন, আপনি হ্যাঁ, 15 মিনিট বলে দেওয়ার পরে গুপ্তা স্যারকে ছেড়ে দেবেন, ঠিক আছে? গুপ্তা স্যার হ্যাঁ গুপ্তা স্যার আছেন তারপরে তো? একটু মাঝখানে একটু আকাশকে দিয়ে দিবেন, তারপরে ঠিক গুপ্তা আছে? স্যার আছেন তো? দীপক গুপ্তা স্যার ইজ দেয়ার স্যার? হ্যালো দিয়ে দিবেন। Yes, হ্যাঁ madam. ঠিক আছে গুপ্তা স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ या অল দ্য টিচার্স আপনি একটু আকাশ আর রঞ্জনাকে দেওয়ার পরে গুপ্তা স্যার প্লিজ কনক্লুড করে দেবে, ঠিক আছে? গুপ্তা স্যার বলুন। हाँ, sure. Okay, so it's very nice to interact with you for the first time we are meeting since your wards have joined class 11, and there was a long gap, and we have joined the classes very late. So we need your cooperation. We need the cooperation of the students as well as the parents, because you know that after class 10, when they come to class 11, it becomes a bit difficult for them to get adjusted with the syllabus. Nevertheless, the syllabus has been reduced by CBSE, and I have shared the syllabus with the students of class 11. What are the topics that have been deleted? Almost in all the lessons I am going to, when I'll be discussing I will be discussing with the students the topics that have been deleted from the syllabus. And one thing I would like to reiterate, the parents need to take full care of their wards, you know, because your wards are sitting at home, and we are not able to have a one-to-one interaction that we used to have when they were attending the classes. तो बच्चे जब क्लास में रहे होते हैं कि हाँ ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, तो we go near that student, we tell them what is your problem, if you're having any problem. But we used to do face reading, you know, from the especially in physics, when I'm teaching in the class, I used to make out from the face, yes, the student is not able to follow what I'm telling, what I'm explaining. So I used to catch hold of the student and I used to ask, yes, please tell what's your problem. But here I'm not able to do. So that is why I'm telling the parents that please monitor with the students and ensure that they are attending the classes regularly. That is very, very important. And not only that is true for all the subjects, because suppose whatever I'm teaching today, they are not attending my class today, tomorrow they attend the class, tomorrow they come to the class. So, you know, one topic is connected to the next topic. So if they are not attending my class today, tomorrow, whatever I'm teaching, that won't be fruitful at all. That will go totally, it will be a wastage. So please ask your parents, please ask the students to attend the classes regularly. Hello, me Chandan Prasad. Hello, huh? Me Chandan Prasad, the father of Sister Prasad. Right. She is too conscious to express words now. During your class, she is very conscious. Okay. Yeah, I know. Srishti Prasad is always enters the time in class, and she's very regular. And whenever, suppose by 1 or 2 minutes, sometimes some problem is there, then I always ask Srishti, what's the problem today? So I have seen that she's very regular in my class, and then she pays attention because I can make out all the students. You know, there are some classes students in the class. It all depend on him. आप इतना कोऑपरेटिव है, इतना अच्छा से क्लास देती है कि मिस करना नहीं चाहती है और नेवर I know she's never absent in my class. There are quite a number of students in my class. From 51 students, every day above 40 students they are in my class usually most of the days. For example, today when I took class, out of 51 students, there were 41 students in class. But I don't know why the 10 students were absent. And you know that whenever they are absent, usually I ring them up. मैं फोन करती हूँ उनके घर में. मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को फोन करके बोला कि आप इंश्योर कीजिए कि बच्चा मेरा क्लास अटेंड करे. So there's much pain I'm taking. So ma'am, a compliment. I would like to provide you a compliment. कि शुरू में ऐसा था मैम इसके साथ कि ये थोड़ा सा फील कर रही थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी.
लेकिन आप जैसा फैकल्टी जो है ना मैम, वो फैकल्टी पाकर ये कम से कम धन्य है, और रेगुलर मुझे बोलना भी नहीं पड़ता है, अपने क्लास के प्रति काफी सिंसियर भी है मैम। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप लोग इतना अच्छे से क्लास देती है कि ये लोग शायद कोई दूसरे फैकल्टी को नहीं भी हायर करे, तभी ये लोग आराम से कर सकती है मैम। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और एक बात सारे पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, दिस इज नॉट ओनली फॉर वन और टू, दिस इज फॉर एवरीवन। आई एम टेलिंग that please ensure that especially when I teach physics, I make it a point to write everything on the screen so that the students are able to understand better. Simply if I go on speaking, it will be difficult for the students to understand. I share all my resources. Sometimes I share my PowerPoint presentations. Sometimes I share the videos. Whatever resources I can share with them, I usually share so that it will be a benefit for the students. So I expect that students will also work hard in the same way as I'm working hard. And only, Really, you know, ma'am. it is a give and take policy. It is a give and take policy. So when Yeah, I ma'am. am Yeah, working ma'am. hard, I expect the students also to work hard. So then it is a great satisfaction for me. So that is why I request the parents, please monitor your children. I know it is very difficult for the children to be glued on the screen for so many hours, but there is no other go. We are expecting that, of course. I don't know what will happen, what is in store for us. Only God alone can predict. We cannot predict. You know, God, man proposes and God disposes. Anyway. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yes. Really, ma'am. So we are expecting whatever resources we are having, whatever means we are having, we are all trying to do our best and give out the maximum to our students. So we request the students also to cooperate with us, the parents also cooperate with us, because online teaching will be successful only if the parents cooperate with us. So thank you. I agree with you, ma'am. Yeah, thank you for giving me a patient hearing. If any parent wants to discuss anything with me, he or she is welcome. ম্যাডাম, আই এম তপন কুমার হালদার, ফাদার অফ সায়ন্তনী হালদার। हाँ बोलिए। হ্যাঁ, ওর অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক আছে তো ম্যাডাম? স্যার ম্যাডাম, সায়ন্তনী is also regular. সায়ন্তনী, to speak the truth, যেই বাচ্চা রেগুলার তাদের সব প্যারেন্টসই রয়েছেন। সমস্ত প্যারেন্টসই রয়েছে আজকে পিটিএম। হ্যাঁ ঠিক আছে। ও আপনার ক্লাসে খুব সিনসিয়ার, ওকে বলতে হয় না যে উঠে পড়ো, তাড়াতাড়ি করো। একদম 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 সাথে সাথে ঢোকে, কারণ আমি তো আসলে রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্স নিই, তো তাই জন্য মোটামুটি আমি করা রেগুলার আছে। এভরিডে রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্স আই টেক এন্ড আই সামটাইমস ডিসপ্লে অলসো দ্য অ্যাটেন্ডেন্স শিট। ওরাও নিজেরাও দেখতে পায় যে ওরা কতদিন অ্যাবসেন্ট আছে বা প্রেজেন্ট আছে। হ্যাঁ, একটু দেখবেন ম্যাডাম, একটু গাইডেন্সটা। আপনি দিচ্ছেন, খুব ভালো গাইডেন্স দিচ্ছেন, ওতে আমি দেখছি খুব ভালোই করছে ও। হ্যাঁ, আপনারা যেভাবে গাইড করছেন সত্যি খুব। বাচ্চারা এমনিতে খুবই কোঅপারেট করছে এবং এই জন্য আমরা চাই যে প্যারেন্টসরা কোঅপারেট করে। আমরা বুঝতে পারি বাচ্চাদের খুবই কষ্ট করে এরকম বাড়িতে বসে কনফাইন্ড হয়ে থাকা। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দ্য চিলড্রেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড देयर প্রবলেম। আর এখন তো ওদের মানে এখন কোথায় ওরা স্কুলে আসবে, এনজয় করবে, বিকজ দে আর মিসিং দ্য স্কুল লাইক এনিথিং। আর উই নো দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি ম্যাডাম, আমরা দমদমে থাকি, তো ওর মাই ওকে নিয়ে আসতো স্কুল থেকে। ওর মাই আপনার কথা বলেছিল। ভেরি মানে খুব গুড লাক যে আপনার মতো টিচার আমরা পেয়েছি। আমি আপনার সম্পর্কে শুনেছি, তো উনি ওর মাই বলছিল যে আপনার কথা। যাই হোক, ঠিক আছে, আপনারা মানে চেষ্টা করবেন যতটা করতে পারেন। আমরাও চেষ্টা করব। we are trying level best. Okay. So thank you all the parents. Deepak Gupta sir, please continue. Gupta sir, am I audible to all? Yes. Thank you the teachers. I'm leaving, and the parents also. Thank you very much, madam. Thank you so much. Thank you ma'am. Okay, myself Deepak Gupta, PGT Computer Science of this Vidyalaya. First of all, thanks to everyone for joining this meeting. I think almost सारे टर्म दास सर और गुहा मैडम ने डिस्कस कर दिया है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है 20 डेज जो मैंने कंप्यूटर साइंस क्लास लिया, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट इशू जो सर अटेंडेंस का इशू है। सॉरी टू इन्फॉर्म
approx 47 students have joined in my Google Classroom, CS Google Classroom. But per day, I have observed hardly 37, 38 students join कर रहा है. Means per day 10 से 12 बच्चे absent हो रहे हैं. मेजर प्रॉब्लम क्या है सर? कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो मैंने भी 20 डेज में ऑब्जर्व किया, वो भी लेट से ज्वाइन कर रहे हैं. जैसे सपोज मेरे क्लास का टाइम जैसे आज 8:30 था, मॉर्निंग में मैंने क्लास लिया है, हैव टेक क्लास. देन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 8:37, 8:40 हो जा रहा है, फिर भी बच्चे का स्ट्रेंथ क्या आ रहा है? 30 बच्चे ज्वाइन किए, 32 बच्चे ज्वाइन किए हैं. जब मैं क्लास ओवर करता हूँ 9-10 में, सपोज मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, 9-12 भी चला जाता है कभी अकॉर्डिंग टू टॉपिक. देख रहा हूँ वो जो स्टार्टिंग में 32 या 34 था जब मैंने क्लास स्टार्ट किया, और जो ये हो रहा है तो 41, 42 जा रहा है. मीन्स बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में स्किप भी कट जा रहे हैं, मतलब बीच में वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन कर ले रहे हैं. मैं एक्चुअली जो भी क्लास ले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, पीडीएफ बनाया है, मैं पूरा एक एक चीज दिखा रहा हूँ. आप बच्चों के सामने अगर आप बैठेंगे तो देख सकते हैं कि मैं क्या क्या शेयर कर रहा हूँ. लेकिन फिर भी बच्चों का मुझे वो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, मुझे जैसा लगता है. कुछ बच्चे हैं जैसे मैक, जागृति, सृष्टि, ये सब रेस्पॉन्स करते हैं. अगर किसी का वो कल का क्लास नहीं ज्वाइन कर रही हैं या नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देता है. मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जीएस का बना रखा है, और एक बच्चे को क्लास मॉनिटर भव्य साहब को मैंने डिप्यूट किया है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास वो जो भी बच्चे एब्सेंट हैं उनका एक लिस्ट वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे, जिससे कि पेरेंट्स को पता चल सके कि हाँ आपके बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, और उस बच्चे को भी पता चल सके. लेकिन फिर भी सर बहुत पुअर अटेंडेंस है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे के माइंडसेट में शायद ऐसा है कि वो 9 और 10 पास करे हैं तो 11 को ही बहुत लाइटली ले रहे हैं. बट मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ, इट इज नॉट राइट कि सर 10 तक का फॉर्मेट अलग है, 11, 12 बिल्कुल एकदम डिफरेंट फॉर्मेट है. और अगर आपने साइंस लिया है तो सिलेबस का जो कंप्लीट जो लेवल है वो भी काफी इतना इजी नहीं है, डिफिकल्टी लेवल स्टैंडर्ड है. और मैंने जो भी पैटर्न अभी सीबीएसई ने रिसेंटली चेंज किया है, पैटर्न रिवाइज सिलेबस आया. Am I audible? यस सीबीएसई ने रिसेंटली रिवाइज सिलेबस लॉन्च किया है. मैंने वो अपडेटेड सिलेबस गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दिया, बच्चों के साथ डिस्कस भी किया है. टर्म वाइज इस साल के लिए स्पेशल सिलेबस है फॉर क्लास 11 एंड 12. मींस टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा, और वो सारे क्वेश्चन टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा, और टर्म 2 में आप क्वेश्चन जो आएंगे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर्स आएंगे. तो सर उसके लिए बच्चों के पास डेप्थ नॉलेज होगा तभी वो कर पाएंगे. एमसीक्यू क्वेश्चंस इतना इजी नहीं होगा, उसके लिए पूरा डेप्थ में जाना होगा. तो बच्चे अगर क्लास ही नहीं करेंगे या लेट से ज्वाइन करेंगे तो कैसे पता चलेगा? हम टीचर तो हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, अभी तो हमारे सामने बच्चे अवेलेबल भी नहीं है, क्या बैकग्राउंड में मूवमेंट चल रहा है ये भी हमें क्लियर नहीं होता है. गुड आफ्टरनून सर. यस, गुड आफ्टरनून, प्लीज. अनिकेत की मम्मी बोल रहे हैं सर. जी बताइए. बोल रहे हैं सर कि अनिकेत का भी कैसा चल रहा है पढ़ाई में? देखिए मैडम, अभी तो कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस तो मैं बता सकता हूँ, अभी सभी का नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक अभी टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद मैं कर पाऊंगा. फर्स्ट टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद मैं कंफर्म बता पाऊंगा किसका क्या पोजीशन है. कब तक होगा फर्स्ट टेस्ट? टेस्ट आई थिंक टाइम टेबल क्लास टीम ने शेयर किया होगा. अच्छा, ठीक है. ये सर मुझे लगता है सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है. अच्छा, ठीक है. देख, कम से कम आप बच्चों को एक अभी रिक्वेस्ट है इस मीटिंग के लिए कि बच्चों को बोलिए कि वो टाइमली क्लास ज्वाइन करें. अच्छा सर, एक बात पूछूं? बिल्कुल. शायद का फादर बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर रिगार्डिंग कंप्यूटर बुक, हमारे पास कंप्यूटर और साइंस का पाइथन का एक किताब है, सौमिता अरोड़ा. सुमिता अरोड़ा सर. सुमिता अरोड़ा. हाँ, वो किताब ठीक है ना सर? बुक सारे सही है, मैंने बच्चों को पहले ही बताया था कि सुमिता अरोड़ा, प्रीति या एनसीईआरटी, कोई भी बुक आप ले रहे हैं, कोई भी बुक बेकार नहीं है, सभी बुक सिलेबस एक ही है, सभी बुक अच्छा है. बट मैंने प्रेफर किया था
फिर भी बच्चे ने अगर ले लिया है तो ये कोई इशू नहीं है, आप सुमिता अरोड़ा को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो हमने पढ़ के भी देखा है हेलो थोड़ा सा, किताब बहुत अच्छा। सर, दीपक सर। जी जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। आपका फादर सृष्टि प्रसाद। जी बोलिए। और मैं यही कहूंगा सर, अभी तक मैं सुन रहा था, तो सर आप इतना सिंसियर, आप बिलीव करेंगे सर, इसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है अभी तक कंप्यूटर का, फिर भी आपने जो क्लासेस दिया है सर, उसके आधार पर काफी बहुत कुछ जान पाई है सर। तो सर आप अपने क्लास को सिंसियरिटी के साथ जितना दे रहे हैं ना सर, वही काफी है सर। कौन बच्चा वो बैड लक है उसका, वो गुड लक है ही नहीं कहीं, जो आपके क्लास को यदि वो मिस कर रहा है तो अनफॉर्चुनेट है सर। थैंक यू सर, तो सर आपने जो भी मार्क्स दिया, नहीं, बट मैं मैं ये रिमार्क्स कहना चाहूंगा सर कि मैं जो दे रहा हूँ, अगर कहीं किसी बच्चे को या पेरेंट को अगर बगल में बैठ के देखिए, अगर कहीं कुछ कमी लगती तो इसके लिए तो पीटीएम रखा गया है, आप उसको बताइए, तभी तो जी जी टीचर जी या सर। कमी या जो प्रॉब्लम होगा वो हम लोग शेयर करेंगे, तभी तो हम लोग आगे उसमें सुधार कर सकते हैं। और बट मैं कुछ देख रहा हूँ गार्जियन तो सर हमको चार तो लगता है सर बच्चे नहीं कि हैं, कुछ मैं पहले फिनिश कर लेता हूँ, जस्ट 2 जी मिनट्स। 4-5 बच्चे हैं, जागृति, सृष्टि, मेनक, भव्य साव और भी एक दो है, मुझे भी एक एग्जैक्ट नाम याद नहीं आया। इन 5-6 बच्चों का ही केवल रिस्पॉन्स रहता है। मैं एक स्लाइड पढ़ाता हूँ, उसको प्रैक्टिकली वहां दिखा भी देता हूँ, खुद से ड्रॉ करके मैं लिखता भी हूँ, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। मतलब मैं एक चीज को 2-3 बार बताता हूँ, उसके बाद भी मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी ये 4-5 बच्चे ही रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी बच्चे कुछ बोलते ही नहीं है। अगर वो मुझसे नहीं पूछेंगे या यस नो नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि उनको क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। जो मैंने तो कनेक्टेड है देखा वो सर, भी रिस्पॉन्स आपने नहीं करते हैं। इतना लिटरेचर दिया है ना सर, जी आपने लिटरेचर दिया है, इतना नोट्स दिया है, मैं फॉलो अप करते रहता हूँ सर। ये नॉट ए सर। मैटर सर फॉर ई टीचर सर, यस तो सर। उसको सारी मैं ये पर्सनली वो सबको ये करे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन मुझे वो कहते हुए कुछ ये हो रहा है कि कुछ गार्जियन भी बच्चों पर या तो कमांड नहीं है, या बच्चे वो गार्जियन को मानते नहीं है सर, या फिर वो क्लास लेने पर काफी, अभी भी बच्चे सर इतना माने बड़े संख्या में है, इतने कम संख्या में क्लास ले रहे हैं सर, ये पता ना कैसे हो पाता। सर थोड़ा सा सभी गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट, थोड़ा सा आपको पेन लेना होगा, आइदर आप या मदर, फादर या मदर, थोड़ा सा आप देखिए कि क्या बच्चों को मतलब टीचर क्या पढ़ा रहे हैं या नोट्स दे रहे हैं, वो प्रॉपर उसको ऑब्जर्व कर मतलब करें, वो लिख रहा है नहीं लिख रहा। अभी क्या हो रहा है, क्लास 12 में हम लोगों ने शेयर किया, हम लोग ने जो ऑब्जर्व किया, हम लोग क्लास ले रहे हैं बट बच्चे कॉपी में राइटिंग कर ही नहीं रहे हैं, वो भूल ही गए हैं, इवन किताबें नहीं खरीदे हैं, ऐसा हो रहा है। नहीं तो सर मैं तो गुड हूँ, मेरी बेटी काफी वेल मेंटेन की है आपकी कॉपी को नहीं सर, काफी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो पेरेंट्स भी अवेयर हैं, हाँ बच्चे भी जी aware जी हैं, जी बहुत जी। ज्यादा अवेयर है। मैंने 5-6 का नाम लिया, और भी एक दो केस हो सकता है, बट ज्यादा केस अभी तक मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। और मैं जो नोट्स दे रहा हूँ, आप बुक में देखिएगा, एग्जैक्ट नहीं मैच करेगा, मैं एकदम टू द पॉइंट बनाया हूँ। अगर आप जी उसको जी भी पढ़ लेंगे, और मैंने जब पढ़ाता हूँ तो मेरा एक आदत है, मैं एक चीज को 2-3 बार जब तक रिपीट नहीं करता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट डे क्लास लेता हूँ तो पहले मैं लास्ट डे क्या पढ़ाया था थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि उनको कहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है। जी जी। अभी तो पाइथन स्टार्ट होगा, आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, जैसे ही प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा तो मैं लाइव कोडिंग करके भी दिखाऊंगा अगर ये ऑनलाइन क्लास चला तो। लेकिन नहीं मुझे मैं अफसोस लग रहा कहूँगा है कि सर, सभी बच्चे आप इसका ही नहीं फायदा नहीं सर, उठा रहे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छी फायदा। फैकल्टी मिली है सर, कंप्यूटर का भी फैकल्टी उसको जो मिल गया है, हमको कोई चिंता ही नहीं है सर, आपके रूप में जो फैकल्टी मिला है उसको सर, और काफी अप्रिशिएट करती है सर आपके क्लास ओवरव्यू। ठीक है जी ना, चलिए सर, आप डोंट वरी सर, आप अपना काम कर रहे हैं, अपना एफर्ट दे रहे हैं, नहीं सर, अगला को हमारा कितना लेना है कितनी। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो तो हमें भी खुशी होती है सर। जी जी हाँ, ये सर एक चीज है, बहुत बड़ी बात बोले सर, बहुत बड़ी बात बोले। मैं 10 मिनट तक रुका हुआ रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक स्टैंडर्ड हमारा स्ट्रेंथ आ जाए तब मैं स्टार्ट करूँ, कि किसी का कोई लॉस ना हो। लेकिन क्या आज बात तक मुझे ये ऐसा नहीं लगा कि कभी 47 बच्चे क्लास में ज्वाइन किए, आज तक नहीं गया, हार्डली स्ट्रेंथ 43 गया है, क्योंकि मैं नहीं इसमें पढ़ रहा हूँ मैं बच्चों को। मैं सर एक मिनट रोक रहा हूँ सर, जितने भी गार्जियन टच में है सर, इट्स माय हार्टेस्ट रिक्वेस्ट सर, यू ट्राई टू कन्विंस योर वर्ड्स so that they may join every classes of दीपक जी सर। ये मैं सभी गार्जियन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो इतना सिंसियर होकर उनकी एक्सपेक्टेशन जो है
वह सिर्फ बच्चों को 2-4 बच्चों को सिखाना नहीं है, इस क्वांटिटी में बच्चों को सिखाना है। तो काइंडली सर अभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को जरूर बोलें कि रेगुलर क्लास लेने के लिए। If any other चलिए सर। parents wants to say something, please say. हाँ হ্যালো স্যার। হ্যালো, जी जी আমি আকাশের মা বলছি স্যার। নমস্কার। किनकी मदर बोल रही मैडम? আকাশ কি মা? आकाश जी बोलिए। উপকার। जी मैडम बोलिए। হ্যাঁ স্যার, এরকম সিস্টেম করা যায় না যে আপনি কি যখন ক্লাস নেন ভিডিও অন করে, মানে স্টুডেন্ট কি করছে দেখতে পান আপনি? नहीं, स्टूडेंट को देखने की जरूरत नहीं है, जब रिक्वायर्ड होता है तभी हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग जैसे कोई टेस्ट हो रहा है देन उसके रिक्वायर्ड है, लेकिन जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ क्वेश्चन देन उस टाइम में ऑडियो तो ऑन होना चाहिए, रिस्पॉन्स तो होना चाहिए, वो नहीं होता है कुछ बच्चों को छोड़कर। আর ওইটাই স্যার, যদি এইরকম সিস্টেম করা যাবে না যে ভিডিওটা আপনি দেখতে পাবেন যে স্টুডেंट কি করছে? देखिए मैडम, अगर सबका वीडियो ऑन करा देंगे तो फिर नेट कनेक्टिविटी फिर हमारा प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का भी इशू आता है। तो सबका वीडियो ऑन होगा तो फिर इको बहुत ज्यादा होने लगेगा, सबका ऑडियो भी ऑन कर देंगे तो इको होगा, तो फिर प्रॉपर वे में स्मूथ क्लास नहीं हो पाएगा। কারণ এইটা একটা চিন্তা থাকে স্যার যে ক্লাস ঠিকঠাক করছে किना। আমি তো नहीं मैडम, क्लास चलता है तो आप अगर 2-3 राउंड उस समय लगा लेंगे बच्चे के आसपास, मॉनिटर कर लेंगे, तो फिर वो बच्चा अगर आप टाइटली मॉनिटर करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है बैकएंड पे, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड है, जस्ट कनेक्टेड है, वो कुछ दूसरा काम कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, ये भी हो रहा है। এটা আপনি বুঝতে পারেন স্যার? आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, हम लोग तो ऑब्जर्व करते हैं ना। না না, আমি সেই জন্যই আপনাকে এই কথাটা तो বললাম। ये देखना पड़ेगा, ये आपके लेवल पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होगा आपको। হ্যাঁ, কারণ স্যার আগের বছর ক্লাসেও দেখেছি তো, কারণ কিছু লিখতো না, এ করতো না, ও নিজের কাজ নিজে করে যেত। সেই জন্য এই বছরটা যদি আপনারা একটু মানে मैडम आप थोड़ा सा मॉनिटरिंग कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर फर्स्ट यूनिट टेस्ट ये होने दीजिए, मंथली यूनिट टेस्ट PT1 होने दीजिए, उसके बाद पिक्चर क्लियर आएगा किस बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में शेयर कर लेंगे। एनी अदर पेरेंट? আর একটা স্যার, जी অনলাইন অফলাइन क्लास কি এখন শুরু হবে না? नहीं, फिलहाल तो मैडम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ऑर्डर है पूजा के बाद खुलने का चांस है, लेकिन जब तक ये ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक तो हम लोग नहीं दे पाएंगे ना ऑर्डर। पूजा के बाद मोस्ट होपफुली उम्मीद है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट। ओके, थैंक्स। एनी अदर पेरेंट? हिंदी मैडम ज्वाइन की है ना? हेलो जी सर। मैडम आप कंटिन्यू कर लीजिए, और भी कोई एक सर ज्वाइन है ना सर इंग्लिश के? हाँ सर, इंग्लिश के टीचर हैं। केमिस्ट्री टीचर है। हाँ, केमिस्ट्री टीचर भी हैं। पहले मैडम पहले हिंदी मैडम आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर सर कर लेंगे। जी सर। जी हिंदी में तो खैर मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ाई हूँ और नंबरों को पहचानती भी नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी पेरेंट्स को अगर कुछ पूछना है या बोलना है तो वो बोल सकते हैं। मतलब मैं अभी ज्यादा बच्चों को पहचान नहीं पाती हूँ। हेलो हेलो हेलो। If any parents wants to say, if any parents जी। wants to say something, please share to हिंदी मैडम। जी, अगर हिंदी से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं बच्चों को ज्यादा पहचान नहीं पाती हूँ, इसीलिए अभी फिलहाल ज्यादा लोगों को समझ नहीं पाई हूँ, तो आप खुद ही पूछिए कि क्या दिक्कत है। वैसे थोड़ी समस्या ये है कि ज्यादा बच्चे तक बस माइक ऑन करके रखते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ये जो मेरी तरफ से है, तो आप लोग बताइए कि किसी और को क्या है। दीपक सर। हेलो दीपक सर। जी, जी सर, आप थोड़ा बोल दीजिए। क्या बोलना है मैडम, फिर हेलो। से बोलो। यही सर, हिंदी का तो मैं बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पहचानती हूँ, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या हो तो वो लोग मुझसे
पूछ सकते हैं। बाकी जो है समस्या यही है कि जैसे बच्चे ज्वाइन तो करते हैं लेकिन यही है कि रिस्पांस नहीं देते हैं। कभी कभी जैसे पूछने से मैं तो पर्टिकुलर सभी का नाम लेती हूँ इसीलिए। आई थिंक सभी जी, पेरेंट्स ने, अगर मैडम ने जो भी यहाँ पर रिव्यू दिया है आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो काइंडली बच्चे को बोलिए कि मैडम जो भी पूछ रही हैं एटलीस्ट रिस्पॉन्स करें। अगर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे बच्चे तो मैडम फिर आगे कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है उनका या हाँ कोई क्या रिस्पॉन्स प्रॉब्लम है। करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत जैसे कभी कभी होता है, हो सकता है कि ना समझ में आया तो वो पूछ सकते हैं। मैं तो सबसे पूछती हूँ किसी को समझ में आया नहीं समझ में आया। अब बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम फिलहाल अगर होती नहीं है क्योंकि बाकी अलग सेक्शन के जो बच्चे अब मुझे समझ में आते ए कौन सी वाले ये मैं थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैडम वो इसीलिए हो बच्चे जाएगा, ऐसे वो इशू रिस्पॉन्स तो नहीं है। करते हैं लेकिन वो सी आपने, सेक्शन में कौन से हैं। हाँ मैडम आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है ना, अभी कुछ दिन ही हुआ है जी आपका सर। ज्वाइन किया, धीरे धीरे हो जाएगा टाइम के साथ, वो बड़ा इशू नहीं है। किसी पेरेंट्स को अगर हाँ हिंदी जी सर। कोई प्रॉब्लम आ रहा है या बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली शेयर कीजिए मैडम के साथ। जी सर हिंदी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी पेरेंट्स को। जी सर। जी सर। प्लीज केमिस्ट्री सर प्लीज कंटिन्यू कर दीजिए आप। Thank you, sir. Good थैंक्स। afternoon, teachers and parents present over here. So, as you know that there's a huge lot of difference as we compare class 10 to 11. The thing is, if you say that class 10 was a pond, then class 11 is a sea. I don't want to inculcate any kind of fear into the children, but the thing is, अब थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। क्योंकि एक समय क्या था, खाली साइंस एक सब्जेक्ट था, उसी के अंदर सब आ जाते थे। वी हैड एवरीथिंग इन देयर, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब आ जाते, बट नाउ द थिंग इज सब अब अलग अलग एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो सब में टाइम देना पड़ता है। एंड द थिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट चैप्टर का बात कर रहा हूँ, जो मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हूँ। सो उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं जो कराया हूँ उसमें, उसके बाद भी वो तो कंसेप्चुअल्स है। उसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन को आप एक बार करोगे ना, आपको लगेगा यू हैव अंडरस्टूड दैट। द थिंग इज, आप उसी क्वेश्चन को सेकंड टाइम करने जाओगे, यू विल फील दैट अरे अच्छा मैं ये चीज तो मिस कर गया था। तो दैट थिंग हैपेंस। सो आई होप थोड़ा सा पेरेंट्स का थोड़ा हेल्प लगेगा मेरे को। एंड अनदर इज मोस्ट प्रोबेबली maybe 10 10 to 15, not 10 to 15, I would say that number has come down, but around 10 से 8 बच्चे को तो मैं हो सकता अभी तक देखा भी नहीं हूँ क्लास में। सो दैट इज द थिंग। सो प्लीज पेरेंट्स थोड़ा हेल्प कीजिएगा। एंड आकाश इफ यू, जी, अटेंडेंस यस सर, इशू अभी भी है। यस आकाश सर, जी, यस सर, यस सर, I'm the father of Sister Prasad. यस सर, I would like to say you something. यस सर, सर आपने मैंने आपके रूप में एक फैकल्टी पाकर जो सृष्टि है वो मैं देखा हूँ कि केमिस्ट्री जिसको लेकर काफी हेडेक में थी, काफी इसको इजी वे से ले और अच्छा लगता है उसको केमिस्ट्री क्लास अब। तो सर थैंक यू आप नंबर तो नो डाउट एक टीचर का एक्सपेक्टेशन होता है कि वो नंबर लड़कों का ज्यादा से ज्यादा संख्या रहता है तो उनको कराने में भी काफी ये होता है, अच्छा लगता है। सर वो ग्रेजुअली वो हमको तो पता नहीं है गार्जियन क्यों ऐसा करते हैं, गार्जियन उसको वॉच आउट क्यों नहीं करते, बच्चों को कॉम्पेल क्यों नहीं करते हैं क्लास लेने के लिए। और ये अनफॉर्चुनेट है सर उन बच्चों के लिए भी, उनके माता पिताओं के लिए भी, कि अभी नया एक सब्जेक्ट आया है जिसमें पीसीएम का एक अहम भूमिका होता है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। और वो फिजिक्स और मैथ या केमिस्ट्री यदि इग्नोर कर रहे हैं क्लास को तो सर इसमें आपको क्या करना है सर। बट यस, आप इंसर्ट हो रहे होंगे इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप नहीं दे पा रहे हैं। यस तो सर, और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण उनके लिए है सर। आप तो एक दैट इज चैप्टर द थिंग कराए हैं, सर। मैं देखा हूँ कि बेटी को मैं पूछा हूँ तो बेटी वो सर कहीं से भी सर अभी टेस्ट ले लें तो मैं उसको पूरा कर सकती हूँ।
अभी आपने ऑर्गेनिक वगैरह ये सब कराया नहीं है सर, ठीक है ना? Yes. तो जो भी हो आप न्यूमेरिकल में ही है, तो कितना अच्छा से क्लास लेती है और बोलती है नहीं पापा फिजिक्स सब केमिस्ट्री अच्छा से हो जाएगा। तो नॉट ए मैटर जो और ये प्राइमरी मैंने क्लास 11 बच्चे के लिए सर, ठीक है ना? सर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एक्चुअली। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एकदम मतलब जितना बेसिक लेवल से पढ़ा सकूँ उतना आइडिया देने का। बट द थिंग इज स्टूडेंट को भी अपने से थोड़ा सा अपने आप को हेल्प करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। जी जी I would सर। say that do follow the instructions provided in the class and to revise the topic, ठीक है, that I taught in the class actively, तो थोड़ा help होगा, ठीक है। तो और ये सर चीज थोड़ा ये करना कहीं पड़ेगा और सर क्या। हाँ आपसे काफी इम्प्रेस है सर, और एक क्लास के लिए ट्यूशन के लिए बोल रही थी। मैं बोला सर जो क्लास दे रहे हैं दो नजदीक तो है नहीं, और नजदीक यदि सर ये अवेलेबल हो पाएंगे तो फिर जाके क्लास भी कर लेना, ठीक है। no, so actually sir I am preparing for other exam too, so that's why I don't have proper time। तो यस सर। वो problem है, तो मैं भी वो सब तो सर बात अलग है। but the हाँ thing is क्लास करे it will be enough, but खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। that is the नहीं, thing। मैंने अभी अभी दीपक सर के लिए, मैम के लिए, मैं सुन रहा था सभी की बातों को। मैं फिर से दोहराऊंगा आकाश सर के लिए कि कम से कम आप सभी अपने बच्चों को कम से कम ये कीजिए, और जिनको आप जानते हैं उनको भी इंसिस्ट कीजिए कि बच्चे रेगुलर रहें क्लास में, ताकि सर अपना फुल एफर्ट तो ऐसे ही देते हैं, वो सारे सर ज्यादा से मैं एक ज्यादा और कहना चाहूंगा, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी सर बोलिए आप सर। करंट सिनेरियो देख लीजिए, ये पेरेंट टीचर्स मीटिंग रखा गया है जिसमें टीचर और पेरेंट के बीच में हम लोग का जो भी बातें हैं बच्चों के लिए, बच्चों जो भी हम लोग ऑब्जर्व किया वो शेयर कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक इसका स्ट्रेंथ है क्लास टीचर तो दास सर है, बट मैं बता रहा हूँ एज ए सब्जेक्ट टीचर, मुझे जहाँ तक लगता है क्लास 7C का स्ट्रेंथ 51 है। बट आप अभी देख वाह, पाएंगे पीएम में मीटिंग में अभी मैं स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, हार्डली 31 पेरेंट्स के बराबर है, 31। सर अनफॉर्चुनेट है से सर। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाकी जो पेरेंट ज्वाइन नहीं है उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने अपने पेरेंट को बताया ही नहीं है कि ने पीटीएम मीटिंग रखा है, उन्होंने लिंक भेजा है गूगल मीट का, हमें ज्वाइन करना है। आप इस सिनारियो में क्या टीचर कर पाएगा बताइए? तब तो हम लोग को फिजिकली ये मीटिंग बुलाना होगा, फिर यही करना होगा, स्कूल में बुलाना नहीं होगा। सर, आप लोग कर रहे हैं ना सर, काइंडली सर, ये मैं काफी यहाँ पे ये हूँ सर, इमोशनल हूँ कि सर आप लोग जितना कर पा रहे हैं जो बच्चों के प्रति चेष्टा कर रहे हैं देने के लिए, ये गार्जियन अब क्या कीजिएगा सर। मैं अगर तो कुछ सर सिंगल गार्जियन अपने को मैं जो कर रहा हूँ मेरे नोट्स देखिए और मेरा क्लास देखिए और बच्चों से पूछिए, अगर उनको प्रॉब्लम है डायरेक्ट मुझसे बात करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मैं तो बोला सर कि ये स्लो का ऐसा आदत बन जाता है ना सर, हम लोग कॉलिकल लैंग्वेज में एक तो बात कहेंगे कि वो टेक इजी लुक बिजी, आप लोग भी इतना व्यस्तता दिखाते हैं कि वो अच्छा है नहीं नहीं सर। सर, इसमें बहुत सारे पेरेंट्स को आई थिंक पता ही नहीं है कि आज पीटीएम भी है, क्योंकि बच्चों ने शेयर नहीं किया, तभी तो 31 पेरेंट ही ज्वाइन है आउट ऑफ यही बात है 51। सर। आप सर मैं तो यहाँ पे ही कहूंगा सर कि आप सारा लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दें। मैं पर्सनली मैं सभी को कम से कम मैं बोलूंगा गार्जियन को जना दूंगा कि आज पीटीएम मीटिंग जो आप लोग के लिए कम से कम कुछ तो अच्छा, आप एक मीटिंग बुलाए हैं सभी को जनाने के लिए, सभी को बताने के लिए सर। इसके बावजूद भी यदि बच्चे ही ना बताएं, बच्चे ही ऐसा कर जाए, गुमराह कर जाए, अभी मिसगाइड आप कर जाए। देख पा रहे होंगे अभी और जी दो जी स्ट्रेंथ सर। और घटी है, हार्डली 30 पेरेंट्स कनेक्टेड हैं, तो इसमें हम लोग की बातें अभी तक नहीं पहुंच रही है ना। यही बातें हैं सर कि बहुत बुरा है। आप तो अपनी तरफ से फुल एफर्ट दे रहे हैं सर, ठीक है सर ना सर। इवन सर मैंने देखा है कि क्लास में जब मैं किसी का नाम लेके पूछना शुरू करता हूँ तो कुछ कुछ हाँ, बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल माधवी के बारे में मैं जानता हूँ, उसको मैं देखा हूँ जब भी मैं पूछना नहीं शुरू करता हूँ उसका नाम आने वाला रहता है, वो लीव कर रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस जगह पे, मैं क्या कर सकता हूँ उसके बाद। तो सही में तो भाग्यपूर्ण है सर, ठीक है ना। खैर सर मैं यही कहूंगा सर कि मैं भी एक टीचर हूँ सर, और मैं देखा हूँ कि मैं जो भी बच्चे मेरे सामने रहते हैं उन्हीं को मैं फुल एफर्ट देके पढ़ाता हूँ सर। और आप जो भी बच्चे पा रहे हैं सर उनको दीजिए, ताकि अगला दिन वो जब ज्वाइन करे तो उसको पता कर चले कि वो क्या मिस अप कर गया, ठीक है ना। और क्या मैं कहूंगा सर, आप जबरदस्ती किसी को तो
क्लास करने के लिए नहीं कर सकते? सर हम आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मैं केवल सिंगल लाइन में बस एक ही बात कहूंगा कि मेरा सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप बच्चे के लिए थोड़ा सा पेन लीजिए। आप देखिए कि आपका बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर क्लास कर रहा है बस। तो उस टाइम में थोड़ा सा आप मॉनिटर कर लीजिए कि केवल कनेक्टेड है या फिर कुछ और भी काम कर रहा है। जो टीचर ने होमवर्क दिया है या क्लास वर्क असाइन किया वो कॉपी में लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। थोड़ा सा निकालना होगा, एटलीस्ट 11-12 में तो निकालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा इसमें, फिर बच्चे तो बच्चे हैं सर, चाहे वो 11 में हो या 12 में हो या 10 में। यही सर, यही बात आपकी गाइडेंस की हम एक बात कहना चाहते हैं। जी बात है कि हम लोग आज टुडेज मीटिंग में जितना पेरेंट्स ज्वाइन किया है, हमको लगता है कि ये जो स्टूडेंट है एक्टिव है। जो लोग आता ही नहीं है आपका क्लास करने के लिए, तो अभी ये खबर तो उसके पास पहुंचा भी नहीं। क्लास टीचर पहुंचाएंगे, 10 तक पहुंचाएंगे, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैंने तो जस्ट आपको शेयर किया कि ऐसा हो रहा है। आगे हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेरेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, टीचर आप एक्चुअली आउट ऑफ 51 स्टूडेंट 51 को ही ये खबर होना चाहिए था, है ना। 51 को ही व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया, इट मींस 51 को ही तो खबर है सर। देखता भी नहीं होगा, नहीं देखा होगा, ज्वाइन नहीं किया होगा, या बच्चे जो नहीं ज्वाइन करते उन्होंने पेरेंट्स को बताया भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। उन लोग का बच्चा भी नहीं ज्वाइन करता होगा क्लास में, इसलिए उन्होंने पेरेंट को बताया नहीं, क्योंकि हम लोग तो शेयर कर रहे हैं एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को शेयर कर रहे हैं। आप ठीक ही कर रहे हैं, आप लोग ठीक ही कर रहे हैं। कोई नहीं सर, वो नेक्स्ट मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। ये तो मैं तो बोला सर, इन दिस रिगार्ड सर, I would like to say something. I would try to provide all the list of parents. मैं पर्सनली उनसे बात करूंगा सर, मैं पर्सनली उनको मैसेज दूंगा। यदि आप लोगों को कहीं हम तो जानता कुछ कीजिएगा सर। नहीं सर, हम लोग अपने लेवल पे कर लेंगे। मैं दास सर इन्फॉर्म कर दूंगा, दास सर अपने लेवल पे एक्शन ले लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर हम लोग मीटिंग ओवर करते हैं, टाइम भी हो गया है 2:10 हो रहा है। जी, मैं लास्ट में यही कहूंगा सर, ये आप सभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे पास कि मेरी बेटी जो साइंस लेने के पहले थोड़ा सा नर्वस थी। अभी सर आप लोग के चलते सर बोल रहा हूँ सर कि इतने अच्छे गाइड कर रहे हैं सर कि मैं इसके लिए सैल्यूट है, हेड्स अप। थैंक यू सर, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स सर, थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। Okay, thanks to everyone for joining this meeting. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks to everyone. Have a nice day once again. Thank you, sir. Please leave. Thank you, sir. You may leave now, please.